ऋषिता मेति यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदेद भुवात पितपुण्य पुण्य तथा तथा स्वल्पेर हृदि अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराशि. According to your surrender of our Chaitanya Mahaprabhu, and automatically divine Radha Krishna Prem manifest in your heart. Saying Jatha Jatha Gaura Padara Binde Binded Bhuvat Kritapunna Punja Tatha Tatha Sarped Hidi Akasmat Radha Padambujo Sudamburash. Surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Without surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu, especially in this Kali Yuga, you may not enter in Brajapaya. Because in this special Kali Yuga, Dhanna Kali, only Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is giving this prayer. And इस कली युग में केवल महाप्रभु ही ब्रज प्रेम को जो है प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं. तो महाप्रभु के चरण आश्रय बिना जो भी भजन कर रहे हैं वो वास्तव रूप में ब्रज प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकते. आराधितो नववनं वृंदावनस्ते आराधितो नववनं वृंदावनस्ते नाराधितो नववनं वृंदावन एव द्वे आराधितो द्विजसुत ब्रज नागरस्ते नाराधितो द्विजसुत अन्नतवेह कृष्ण आराधितो नववनम one who worship Navadvip Dham, then automatically he will enter in Brajadham, Brajadananaste. Naradhito Navavanam. Those who are not taking shelter, those who are Navadvip Dham, they may not enter in Vrindavan Dham. Aradhito Dijasuto, one who worship Lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, very easy to enter in Krishna, who is the beloved of the gopis. And those who are not taking shelter of Lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they will not enter the Lotus feet of Krishna, who is the beloved of the gopis. So very clearly explained, in this religion, Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving Braja praise. This is the main thing. Other yugas different thing, but this Kali Yuga is called Anna Kali. Anna Kali Yuga Rachai Tanna Avatar. Amar Gaurangir Ghate Adan Khyava. Adan means without taxes. कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है. Without paying the taxes. Free. चलो. Free of charge. चलो. हमारे गौरांगीर घाटी अदान किया हुआ है. जड़ अंध आतुर सभी पार. जड़ अंध आतुर. ये जड़ means those are less intelligent. Andha means even they have no Shastra Gyan, knowledge of the scriptures. Andha means evil, blind means evil. Those who have no knowledge of the scriptures, Shastra. Yoranda Atu. Atu means those who are suffering from the many kinds of distress and unhappiness. Anyhow, taking shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu is saying, I will deliver to them. हमारा गौरांगेर घटे अदान किया हुआ जड़ अंध आतुर सभी पार. So in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is giving the highest Braja prema, not ordinary prema. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is giving highest. That prema is what? Not Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya. Which prema? He is giving Madhurya prema.
their conjugal divine lover राधा and कृष्ण, माधुर्य में लीज गई। महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं वो कि साधारण वस्तु नहीं दे रहे, सर्वोत्तम वस्तु देते जा रहे हैं। तो अधिकार अनधिकार न विचार करके he did not discriminate who is qualified or unqualified. जारे देखे तारे देखें देन प्रेम मिलाए। Whatever who is coming, he is giving. जो आ रहे महाप्रभु उसको दे दिया, ले जा। इसलिए महाप्रभु के कहा जाता है महावदन अत्य उदारम, अति उदार। Is called the embodiment of munificent and magnanimous. देते जा। तथापि जीव अपने अपने अधिकार के अनुसार वो वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, दे तो रहे हैं सब, किंतु जो जिसका अधिकार है उसका अधिकार को वो ग्रहण कर लेंगे। जिस प्रकार बारिश होती है, बारिश पर्वत के चोटी पर भी बारिश होती है, किंतु वह पर आधार नहीं होने पर, पात्रत्व नहीं होने पर वो जल पहाड़ के चोटी से नीचे आ जाता है। पहाड़ के जल नीचे आ जाता ही नहीं आता। चलो इतना ही तो हम कहते हैं, जब पत्थर पर पानी बरसता है, कम से कम पत्थर तो थोड़ा बहुत गीला तो हो जाती है। जहाँ पर बारिश नहीं होती है वो पत्थर तो ऐसे ही सूखे पड़े रहता है, किंतु बारिश होने पर देखो उस पत्थर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, काई जम जाता है, और देखते देखते वहीं पर भी धीरे धीरे पेड़ पौधा भी हो जाता है। पहाड़ों पर बारिश होने पर वहीं पर भी पौधे आदि भी उग जाता है। कहने की तात्पर्य है महाप्रभु ऐसे परम दयालु है, अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके सभियों के जो है ये प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए कह रहे हैं जारे देखे तारे देन प्रेम विलाइया, व्हाटएवर इज कमिंग इज गिविंग, टेक दिस। इसलिए कहते हैं अत्य उदार, अति उदार चैतन्य महाप्रभु। और भी सर्वोत्तम उदार क्या है, मैग्नेटिक क्या है। कृष्ण भी उदार है, किंतु कृष्ण उदार होने पर भी वो क्या बोलते हैं, लिमिटेड है। इसलिए कृष्ण की कहा गया माधुर्य प्रधान उदार जी है। क्या बोला, माधुर्य प्रधान उदार है। माधुर्यता स्वीटनेस दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी उदारता मैग्नेटिक। क्यों, चैतन्य कृष्ण जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं वो वृंदावन के अंदर ही प्रदान कर रहे हैं, वृंदावन के बाहर नहीं है। लतास्व को ओपी प्रेम अबुद्धंचते, वृंदावन की जितने में लता वृक्ष आदि जो है वो सब कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो रहा है, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। वृंदावन के बाहर के बारे में नहीं कह रहे, वृंदावन में वृक्ष लता आदि है, गोविंद के दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा सब उन्मत्त हो जाते हैं। जहाँ पर भ्रमर गुंजन आदि करते रहते हैं, जिनकी वंचित ध्वनि सुन करके शिला आदि पिघल जाते हैं। नदी की जलधारा जो है वो स्तंभित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नद्दस तथा तत्वधार्य मुकुंद गीतम, भगवान श्री हरि की मुकुंद की वंशित ध्वनि सुन करके नदियों की जलधारा क्या हो गया, स्तंभित हो गई। जलधारा तो ऊपर से आ रहे हैं, नदियों की जलधारा ऊपर से आ रहे, किंतु नीचे आकर के
फिर आगे प्रवाहित नहीं हो रहे, वहीं पर क्या हो दिया, रुक जाते, मैंने वॉलपोल कर रहे। नद्दस तथा तदुवधार्य मुकुंद गीतम आवर्त भग्न विवेगा। आवर्त माने वहीं पर एक घूर्णी पकड़ देते, भ्रमित हो जाए, हैं? जिसे कहा जाता है भंवर पड़ जाता है, भंवर समझते क्यों ना, मुकुंद के वेणुगीत की ऐसे सुंदर मधुर जो शब्द जो है, तान जो है, यहाँ तक भी गंगा, मानसी गंगा, जमुना आदि जल नदी पे जल धारा गोविंद की चरण छोड़ करके जाना नहीं चाहते, और उनकी सारे सब वस्तु क्या है, विभ्रम हो गया, विभ्रम से तो है सब वालपोल हो गया, अब उल्टा पल्टा सब हो गया, चित्त इतने ही होते जा रहे हैं। इसलिए कहना नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त भवभग्न वेगा, स्तलिंगन आलिंगन है, क्योंकि गोविंद दर्शन, गोविंद स्पर्शन, गोविंद की मनुध्वनि में इतनी सुंदर माधुर्यता जो है, वृंदावन की नदियों की जलधारा की दृष्टि कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? ये गोपियां गा रही है। वृंदावन की जलधारा तो चिन्मय है, भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतम कथा गान नाट्यम गमनो की चिंतामणि है, वो अपराकृत है, किंतु तथापि प्राकृतवत दिखाई पड़ते जा रहे। किंतु महाभागवती गोपियां की दृष्टि ऐसे हो रहे हैं, देख रही है, देखो सभी इन वृंदावन के मानसी गंगा, जमुना आदि जितने नदियां जो है, अथवा ह्रद आदि जो है, ह्रद समझते हो, लेक है, तालाब, ह्रद, ह्रद किसी कहते हैं, तालाब जो है, सरोवर आदि जो, वो भी कैसे हो रहे हैं, उनके जल सब स्थिर हो गया। वृक्ष राजी क्या होते जा रहे हैं, स्थिर हो गए, और वो समस्त विशेष करके बांसों के जो पेड़, झाड़ी आदि है, वृंदावन में बांसों की जो झाड़ियां आदि जो है, वो बांसों की क्या हो रहा है, उनकी चित्त द्रवीभूत होती जा रही है। क्यों? सोच रहे, देखो ये कृष्ण के वंशी ध्वनि सबको कैसे मोहित कर रहे हैं, और कृष्ण सदा सर्वदा वो वंशी को क्या करते हैं, अपने अधरामृत को पान करा रहे, गोपियां का है। गोविंद के अधरामृत एकमात्र गोपियों की सुलभ है, दूसरे के लिए नहीं। किंतु देखो वृंदावन के जितने बांस आदि जो है, वो देख करके सौभाग्य मान रहे, क्यों? वह वृक्ष आदि भी कर रहे, या हमारे वंश में तो बांस पैदा हुआ है? किसी कुल में कोई विशेष व्यक्ति जब आ जाता है, वो व्यक्ति उसी कुल के जो गौरव मानते हैं। आज यदि आपके वंश में जब कोई प्रधानमंत्री हो गया, हालांकि उसके साथ कोई संबंध नहीं है, केस कचहरी भी चल रहे, तथापि यार बाहर जाओगे, फलाना व्यक्ति है मेरे देश के प्रधानमंत्री है, कि उसके गौरव में अपने को जो है गौरवान्वित करते हैं। हालांकि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे कोई संबंध नहीं, किंतु वंश के परिचय होने के नाते उस व्यक्ति के प्रति हमारे एक सहानुभूति है, और उस व्यक्ति के प्रति एक गौरव बोध हो जाता है। गौरव बोध समझते हैं, श्रेष्ठता बुद्धि आ जाता है, गौरव बोध आता है। उसी प्रकार वृंदावन के जितने वृक्ष आदि जो है, वो वृक्ष आदि भी प्रेम में विवाहित होकर के आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्यों? ये वंशी कहां से आया? हमारे वंशज ही आया है, वंश।
है? इसलिए वृक्ष की भी दशा भी ऐसी हो जाता है। इसलिए कहते हैं बनोलता तरुगो व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा। वृंदावन के जितने भी वृक्ष आदि जो है वो वृक्ष आदि गोविंद के कैसे सेवा आदि करते हैं, हम उसको अनुमान नहीं कर सकते। कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं और गोविंद के दर्शन करके वो वृक्ष आदि आनंद में डूब जाते हैं, उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। बोले गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है। जब कृष्ण धीरे धीरे वृंदावन में प्रवेश करते हैं गोचारण के लिए, उस समय वो वृक्ष आदि गोविंद के कैसे सेवा आदि करते हैं। इसलिए कहते हैं बनोलता तरवो व्यंजंती पुष्प फलाढ़। वो वृक्ष आदि अपने पुष्प फल आदि गोविंद के लिए उपहार दे देते हैं, जिसके हमें प्रीति हो जाता है। प्रिय वस्तु के हम क्या दे सकते हैं, हमारे जो कुछ वस्तु है सब दे देते हैं, कंजूसी नहीं करते है। प्रियजन की यही लक्षण होता है। तो उस समय वृंदावन के वृक्ष आदि गोविंद के दर्शन करके उनके हृदय में इतने प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वो वृक्ष आदि क्या करते हैं, गोविंद के जय पुष्पों के द्वारा गोविंद के क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे सदगुरु सत शिष्य के गृह में जब पदार्पण करते हैं, आते हैं, सत शिष्य क्या करते हैं, गुरु के क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 मम मन मंदिरे रह निशी दिन स्वागत करते हैं। तो क्योंकि प्रियजन की प्रति एक अनिर्वचनीय सेवा वृत्ति आनंद की अनुभव होता है। बद्ध दशा में जीव के नहीं हो रहा, वह अपराध होने पर नहीं होता है। किंतु देखो सामान्य भी भक्ति के आभास भी हो जाए, दिसम्बलेम्स ऑफ डिवाइन लव, भक्ति हो जाए किसी को, उसमें इतने भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं वृंदावन जब कृष्ण पधारते हैं, वृक्ष आदि क्या करते हैं, अपने फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद के क्या करते हैं, सादर अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन समझते, टू वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, गोविंद के अभिनंदन करते जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी टीका में वर्णन करते जा रहे हैं। बनोलता तरवो व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा। पहले वृक्ष क्या करते हैं, अपने फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद के लिए सुंदर कारपेट बिछा देते। कारपेट समझते हैं, यही गोविंद के चरण में खरोच न लग जाए। यद्यपि वृंदावन दिव्य अलौकिक भूमि है, यहाँ पर किसी प्रकार से जो है तम वस्तु नहीं है, माने नुकुले पत्थर नहीं है, कंकड़ भी नहीं है। यद्यपि दिखाई पड़ता है कंकड़ आदि पत्थर आदि है, वो वास्तव रूप में स्पंज के भांति है। स्पंज समझते हो, जैसे पैर रखो और अपने आप दब जाता है। तथापि वृक्ष आदि की भावना है, कहीं हमारे गोविंद के चरण में खरोच न आ जाए, कष्ट न हो जाए, इसलिए वो वृक्ष आदि क्या करते हैं, फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद की स्वागत करते हैं और बिल्कुल कारपेट जैसे बिछा देते हैं। लाल नीले हरे पीले आदि अनेक पुष्पों की पंखुड़ियों के द्वारा ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये सेवावृत्ति ममता है। संबंध ज्ञान जितने हमारे उत्पन्न हो जाता है उतना ही हमारे हृदय में ममता आ जाता है। यही ममता ही हमारे प्रेम को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता,
प्रेम की माने साधारण जो परिभाषा जो है, साधारण जो ऑर्डिनरी जो डेफिनेशन क्या है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। भगवान में अनन्य ममता है, न अन्न। इस संसार में विषयी लोगों की ममता किस में लगता है? पहले ममता हमारे किस में है? शरीर में लग जाता है। फिर शरीर से लेकर के शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं उसमें ममता लगती है। अपने पुत्र, कन्या, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि में ममता लगा देती है, लगाती नहीं है। किंतु भक्ति राज्य में क्या है? अनन्य ममता विष्णु, एकमात्र अनन्य, एकमात्र भगवान विष्णु में ही ममता लग जाती है। इसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। वही ममता जो है उसकी प्रेम कहा जाता है। प्रेम और कोई वस्तु नहीं है। हर समय याद रखो, आपके पास वस्तु है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु प्रभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। आपके पास वो वस्तु है, प्रेम है, किंतु उस वस्तु के क्या करना है? श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा धीरे धीरे उसको प्रकाश करना है और कुछ करना नहीं। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण वस्तु, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक को न श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण आदि, कथा आदि, श्रवण आदि के द्वारा हमारी हृदय द्रवीभूत होगा और तब उस समय क्या होता है? हृदय में वो भावना जगेगा। किसी रस में सेवा करने की वासना जगे। वो दास्य हो, सख्त हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, किसी न किसी होगा। इसलिए कह रहे हैं, देखो वनलता तरवो व्यंजनती पुष्प फलाढ्य। वृंदावन की वृक्ष आदि के दशा देखो कैसे गोविंद की सेवा के लिए कितने वो उत्कंठित हो रहा है। पहले गोविंद के क्या करते? जब वृंदावन में गोविंद जब पधारते हैं, पत्तों के द्वारा गोविंद की हवा करते रहते। अपने आप वृक्ष की जो पत्ताएं जो है वो अपने आप क्या हो जाता है? ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं, गोविंद की हवा करते हैं। लताएं जो है चामर के भांति अपने आप हिलना शुरू कर देते हैं। गोविंद आगमन, गोविंद पधार रहे हैं। यह तक भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं वृंदावन के वृक्ष की जो ब्रांचेस है ना, डाल आदि जो है, वृक्ष के डाल आदि जो है, ये ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से घर्षण करके एक शब्द निकलते हैं। जैसे कोई राजाधिराज महाराज समस्त देशों के विजय करके जब अपने देश में जब पधारते हैं तब उनकी समस्त प्रजाएं क्या करते हैं? उनके लिए विजय उत्सव मनाते हैं। तो विजय उत्सव जो मना रहे हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री, तो उस समय क्या करते हैं? पंफेट बजाते, पंफेट जाना, मैंने सबों के सूचित करते हैं। राजाधिराज महाराज समस्त देशों के विजय करके पधार रहे हैं। पहले राजाओं की ऐसे रीतियां थी। बड़े बड़े राजा लोग समस्त छोटे छोटे राजाओं की जो है पराभूत करके, उनके अधीन करके अपने देश में जब आते थे तब उनकी प्रजाएं लोग जो है उनके लिए कैसे स्वागत आदि करते। उसी प्रकार गोविंद जब वृंदावन में पधारते हैं, वृंदावन के वृक्ष आदि भी गोविंद के लिए उसी प्रकार स्वागत करते, पंफेट बजा देते हैं, गोविंद पधार रहे हैं। पत्ताएं जो है अपने आप हिलना शुरू कर देता, हवा करने। लताएं जो है अपने आप हिलने लगी, मानो चामर जुड़ाने लगे। वृक्ष के पुष्प
आदि गोविंद के चरण में अपने आप समाहित हो जाते, पड़ जाते हैं। फल आदि गोविंद के सामने आ जाते हैं। गोविंद के लिए सब कुछ देते हैं। तो मेरे कहने की तात्पर्य इतना ही है कि कृष्ण वृंदावन में जो भी प्रेम प्रदान किया वो वृंदावन के अंदर बाहर भी है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, पत्त उदार पति उदार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के अंदर बाहर सर्वत्र प्रेम प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या जंगल में झारखंड के जंगल जो है जहाँ पर गंभीर जंगल है, शेर भालू आदि रहते हैं, हाथी आदि रहते हैं, सांप बंदर आदि रहते हैं, महाप्रभु वहीं पर भी प्रेम प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु सर्वत्र देते जाते हैं, सब जीवों के देते जा रहे हैं, वृंदावन के अंदर बाहर सर्वत्र। महाप्रभु जब विशेष करके दक्षिण देश में जब पधारे हैं, चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान कर, सबको प्रेम रूपी बाढ़ में मानो यही तो महाप्रभु की विशेष महावदन्यता कहते जाते, इसलिए कहते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वो स्वयं कृष्ण ही गौर वर्ण धारण करके, गौरतिसे गौर वर्ण धारण करके ही प्रकट अधुना प्रकट हुए। गौर वर्ण ने राधा जी की अंग कांति है, मानो साक्षात राधा जी ही कृष्ण की अंग की चारी तरफ क्या कर दिया, आवृत कर दिया, लपेट गया। इसलिए कहा जाता है अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में तो कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, किंतु बहिर्गौर, और बहिर्गौर मैंने गौर वर्ण है को, तो स्वयं राधा जी ही कृष्ण के अंग की चारी तरफ अपने आप क्या कर दिया, आच्छादित कर, आवरण कर है। इसलिए कहते हैं अंतर कृष्ण बहिर्गौर, और वही चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यदि हम सूक्ष्म में विचार करें, वास्तव प्रेम कौन दे रहे हैं? कृष्ण नहीं दे रहे, राधा जी प्रेम प्रदान कर रहे हैं। परम करुणामयी श्रीमती राधिका जीवों की ऐसे दुख कष्ट देख करके वह प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं जे अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रेय हरि पूर्णसंदधि कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वह नचिनंदन। इसलिए रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में इस श्लोक के वर्णन कर रहे हैं। अनर्पित न अर्पित, चिरकाल इस प्रेम को नहीं देते, ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे रोटेशन करके जब चलते हैं 1000 बार हो जाने के बाद, और सत्य त्रेता द्वापर कली, द्वापर के अंत में जब कृष्ण आता है, और फिर द्वापर युग समाप्त होने के साथ ही साथ कलियुग की प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द कलियुग, वह कृष्ण सचिनंदन गौरहरि के रूप में प्रकटित हो रहा है। इन द अनर्पित चलिंग चिनात करुणा अवतीर्ण कलु, करुणा कृपा करके वो आए हैं, करुणा अवतीर्ण कलु, कलियुग में कृपा करके आए, हर कलियुग में नहीं आते। जिस इस कलियुग के किसने कहा है धन्य कलियुग, इसलिए धन्य कलियुगे रुचि धन्य अवतार हमारे गौरांगेर घाटे पदान ख्याल, जड़ अंध आतुर सभी पार, कितना सुंदर प्रकृति। और महाप्रभु इसी प्रेम को देते जा रहे हैं।
जिस कारण यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी ताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक। यदि चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में प्रकटित नहीं होते, ये राधा जी के प्रेम की सर्वोत्तम सीमा कहां पर है वो कौन जानते हैं? कौन प्रकाश करते हैं? जैसे कहते हैं यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी ताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा। प्रेम की रस सीमा है वो है क्या चीज? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदिर मोहन है, मादन और मोहन और मादनाक्ष महाभाव। मादनाक्ष महाभाव की सर्वोत्तम जो पराकाष्ठा है, जिसमें जाकर के भवल्लास रोती आदि की कथा उत्पन्न बहुत कुछ है, और वह महाप्रभु ने किया सब प्रकाशित कर। ये राधा जी की प्रेम की सीमा कहां पर हो सकता है? ये महाप्रभु ने जगत जीवों को दे दिया, और वो कैसे दिया? रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत जीवों को प्रकाशित किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भावों के रूप गोस्वामी पाद के हृदय में संचारित कर दिया। संचारित समझ है, स्टिमुलेट कर महाप्रभु के रूप गोस्वामी हृदय है। इसलिए जो ऑनर जो हम जो व्याख्या करते क्या, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक जो है क्या, जन्मादस्य जत अन्यादित रतश्च अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुज्जंती जत सूरयो। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं नारायण सारे तत्व को प्रकाश करते। यहाँ पर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सारे तत्व के आदि कवि कौन है? रूप गोस्वामी का है आदि कवि। रूप गोस्वामी पाद के हृदय में सारे तत्व को संचार करते। यदि रूप गोस्वामी पाद प्रकट नहीं होते तो ये भावों की प्रकाश नहीं होता। जिसे कहते हैं जंग कली रूप शरीर न धारत। जंग कली रूप शरीर न धारत। तंग ब्रजकुल ब्रज प्रेम महानिधि कोठरी वो उघाड़ता। ये सब तो भावना को दिखा। वैदिक भक्ति रागानुग भक्ति है। संसार के लोग वैदिक भक्ति के रूप जानते हैं, वैकुंठ भक्ति वैकुंठ भक्ति का, किंतु ब्रज प्रेमा भक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और उसमें भी विशेष भी बचे और भी दिखाया। रागात्मिक जन जो ब्रजवासी जन, उनके हृदय में जो प्रेम धन है उसके बारे में कौन जानते हैं? ब्रजवासी किसको कहते हैं? आज तक अभी तक भी लोगों के पता नहीं है। कहते जो ब्रज में रहते सब ब्रजवासी है। बात तो सही है, किंतु ब्रजवासी है कौन? ब्रज में तो सुअर भी रहता है कि नहीं है? जेब कतरे भी रहता है, काय काटने वाले भी रहता है, वो भी कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं। किंतु ब्रजवास किसको कहते हैं या ब्रजवासी किसको कहते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। महाप्रभु ने ये दिखाया सब भावों के दिखाया। रागात्मिक जन किसको कहते हैं? रागात्मिक जन ही वास्तव रूप में वो ब्रजवासी है। रागात्मिक जन किसको कहते हैं? इष्टे सारसिक राग परम आविष्टता भवित। इष्टे सारसिक राग परम आविष्टता तमें तो भविता रागात्मिका कविता। रागात्मिका अनुस्थिता जैसा रागानुगा उच्चते विराजंती उद्दत्तम ब्रजवासी जनादिषु। ब्रजवासी जो है कृष्ण के नित्य परिकर है। Those are the eternal essence of Krishna.
कृष्ण के नित्य परिकर है। वो कोई जीव तत्व नहीं है। जैसे नंद जसोदा, सुबल श्रीदाम, राधा ललिता विजय, ये जीव तत्व नहीं है। ये सब क्या कर परिकर तत्व है। आज स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाशमान कार्य है। कृष्ण सेवा के एक एक प्रेममयी मूर्ति धारण किया हुआ है। जैसे नंद महाराज कृष्ण सेवा की वात्सल्य मूर्ति की प्रेममयी मूर्ति है। आज सुबल श्रीनाम नंद जसोदा ये समझ क्या है? कृष्ण की नित्य परिकर है। परिकर तत्व जीव तत्व एक नहीं है। ये समझना चाहिए। लोग इसके समझते ही नहीं, ना समझने के लिए प्रयास करते हैं। गाना गड्ढा लिखा के भांति दूर से जाते हैं, सब ब्रजवास ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इष्टे सारसिक राग परम आविष्टता हो, अपने एक स्थायी भाव के द्वारा वो स्थिर करके रहते हैं। जैसे नंद महाराज, उनके स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य भाव। कृष्ण मेरा पुत्र है, इस भाव में वो डूबे हुए। मानो कुछ भी कहे। उद्धव आकर के सारे रात अपने लंग लेक्चर दे दिया है, सारे कथा सुनाया है। ये कृष्ण भगवान है। उद्धव क्या 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 कहना चाहते हैं? ये कृष्ण भगवान है। ज्ञानी लोग की नहीं है। ज्ञान के द्वारा क्या स्थापना करते हैं? भगवान भगवत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उद्धव सारे रात नंद महाराज के कहने लगे हैं? ये कृष्ण भगवान है। भगवान की कोई माता नो माता नो पिता। जो भगवान की कोई माता पिता थोड़ी होते हैं। वो तो केवल आपके पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। ज्ञान के द्वारा बोलना शुरू कर। किंतु नंद महाराज की जो स्थायी भाव, जो वात्सल्य भाव, कृष्ण मेरा पुत्र है, एक गाढ़ संस्कार, डीप इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ नंद महाराज। कुछ भी करे, कृष्ण मेरा क्या है? पुत्र है। तुम जो कुछ कार्य करो कहने दो है। आपके मैं कहा दूं ये तुम्हारे बेटा नहीं है, क्या मान लोगे? आपने कभी नहीं, इस बेटा की तो मैंने गर्भधारण किया, मैंने जन्म दिया, मैंने पालन पोषण किया है। डीएनए ना किया बोले वो भी टेस्ट कर लेगा। तो कैसे तुम कह रहे मेरा पुत्र नहीं है? हजार हमने समझाए, क्या मान लोगे? क्यों? ये जड़ जगत में माता पिता में एक भी ऐसे भी जड़ संस्कार ही है। हजार उसको समझाओ है, समझता है। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत दे रहे हैं। उद्धव ज्ञान के द्वारा है नंद महाराज के समझाने के लिए प्रयास किया। इतना ही तो करने लगे उद्धव। ये महाराज आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम किसको समझाना है तो ज्ञान की तरह समझाते हैं। बोले ये तुम्हारे बेटा कब से तुम्हारे बेटा हुआ है? कहा तो वो कमता कसदे पुत्र को कस्य तुम खुद ही तो आते हैं, खुद ही तब तक चिंत घबराहट। ये केवल तुम्हारे माया मोह है और कुछ है। किस जन्म के तुम्हारी पुत्रता आई और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे पुत्र नहीं रहेगा। जीवों की शरीर त्याग देने के साथ ही साथ सारे संबंध क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बताइए। अच्छा ये तो है, किंतु नंद जसोदा की जो भावना जो है ये गाढ़ संस्कार है इसमें। और दूसरी बात है कृष्ण के नित्य माता पिता ही हो। नंद जसोदा कृष्ण की क्या है? नित्य माता पिता है। लोकवत्तु लीला कई बना। इसलिए नंद
उद्धव जी सारी रात नंद महाराज की सारी कथा सुनाए, तत्व ज्ञान अधिग्रह, वेद वेदांत उपनिषद आदि सारी कथा सुनाए, किंतु नंद महाराज मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उद्धव अंत में कहने लगे, देखो आप एक स्थान पे बैठे हुए, इसलिए उसकी चिंतन करते हुए, इसलिए आपके मन डिप्रेशन हो, बाहर घूम करके आओ। अच्छा, नंद महाराज ने क्या कहा, ये उद्धव, हम घर के बाहर कहीं भी जाए, हमारी पुत्र की सारी स्मृतियां अपने आप हृदय में आ जाती है। जमुना के तट पर जाए, क्या देखेंगे, अभी तक कृष्ण की छोटे छोटे चरण चिन्ह भी वहां पर है, जहां पर ध्वज वज्र अंकुश 19 प्रकार के चिन्ह भगवान के चरण कमल वो अभी तक है। और वो समस्त स्मृतियां आ जाती है। ऐसे कह करके नंद महाराज बिल्कुल साधारण छोटे बालक की भांति रोने लगे। उद्धव देख करके आश्चर्य हो, संसार के लोग तो रोते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र पन्नादि के लिए रोते हैं, किंतु भगवान के लिए रोना ये अभूतपूर्व है। भगवान के लिए कोई रोता है? कौन रोएगा? हाथ उठा, कोई नहीं रोएगा है? भगवान के लिए नहीं रोते है? किंतु नंद महाराज, उद्धव ने देखा नंद महाराज कैसे कृष्ण के कैसे रो रहे हैं। किंतु कारण क्या है ना, ये स्थायी भाव रहा था। जो ब्रजवासी जो कह रहे हैं, जी ब्रजवासी कहते हैं इष्टे सारसिक रागो परम अभिष्ट, दो वस्तु यहाँ अपने स्थायी भाव में वो स्थित रहता है, कंप्लीटली फिक्स्ड इज मोड, स्थायी भाव में रहता है। नंद जसोदा ये सब है, कृष्ण मेरा पुत्र है, तुम जो कुछ बोलने दो, आ जा। और दूसरी क्या है, इष्टीय सादृश्य परम अभिष्टता हुई। दूसरी लक्षण क्या है ब्रजवासी की? दूसरी लक्षण क्या बताओ? अभिष्ट है। कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि में अभिष्ट हो गया। खाने में, बैठने में, सोने, गोविंद छोड़कर उनके और कोई नहीं। जादोने अवने मथन प्रलेप रक्षाय क्षणार्ध रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनो अनुरक्त धियो अश्रु कंठ। सुखदेव के सही पाठकार है ये महाराज परीक्षित सुन। ब्रजवासी लोग जब गृह कर्म आदि कर रहे, जादू ने गोदान कर रहे, दूध काट रही जादू, अथवा आंगन के जब गोबर आदि के द्वारा लेप रहे, जो भी कार्य आदि कर रहे, क्या करती है? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। जादू ने अवोन ने मतन प्रलेप पेंचाय क्षणार्धो रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनो अनुरक्त धियोश्रु कंठ धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जान। ब्रजवासियों की चित्त मन उरुक्रम भगवान के ही, वही भगवान में ही समाहित डूबे हुए। उरुक्रम चित्त जान, उरुक्रम भगवान कृष्ण, उरुक्रमयति इति उरुक्रम है, जिसके चरण जो है सर्ग आदि की भी वो नाप, उरुक्रम भगवान। उरुक्रमयति, उरु माने
थाई बचरण है, विक्रम रूप धारण करके सबको क्या कर देंगे ना पिया। भगवान की चरण कमल कैसी नहीं है। वामन अवतार में उन्होंने क्या है, ऐसे विशाल पैरों के जो है बढ़ाया है, और जिसके द्वारा सभी सभी लोग द्रवीभूत हो गए। जब भगवान की चरण कमल गए ऊपर, ब्रह्मा आदि देवता ने भी उस चरण को क्या किया, धो करके कमंडल के जल के द्वारा उसके धो करके उसके है। जम्बुवान की कथा आ जाता है, वो तो 7 बार उसकी क्या परिक्रमा भी कर दी। जम्बुवान की कथा, जम्बुवान उसकी कथा आ गई। उरुक्रमेति, उन्होंने जिसकी क्रम व चरण ऐसे विक्रम सी प्रभाव से अथवा उरुक्रमेति अनेक प्रकार व्याख्या कर। जब भगवान जब वृंदावन में चलते हो, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उस चरण कमल की छाप को देख करके फुटप्रिंट सब उसे स्तव स्तुति आदि करते, आरती आदि उतारते हैं भगवान की चरण। कितने सुंदर, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश इसमें चिन्ह रहता है। अधिक वृद्ध ही ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल को आरती जिस चरण कमल की लक्ष्मी आदि सती साधी स्त्रियां सेवा आदि करते हैं, जावई सिया उचिता अजाद भी रक्त कामी। उद्धव ही तो कह रहे, जावई सिया उचिता अजाद भी रक्त कामी, जुगेश्वरी रूप रास महागुष्ठम, रास रूपी महागुष्ठ में है। और वह समस्त गोपियां कृष्ण के चरण कमल की कैसे सेवा की, तनेषु प्रतिरूप कामतापम है। ये समस्त बहुत कुछ वर्णन होते जाए, कोई साधारण नहीं है। तो कहने की तात्पर्य है, नंद महाराज की स्थायी भाव किसमें, वो ब्रजवासी है, वो ब्रजवासी। हम जब इष्टे साधिक राग और परम अभिष्टता हुए, परम अभिष्ट होकर रहते हैं किसमें, गोविंद के नाम में, गोविंद की कथा में, गोविंद की रूप माधुर्य। गोविंद छोड़ के और उनके मुख से कुछ शब्द निकलते ही नहीं। बद्ध जी में क्या था, उल्टा होता है, भगवत का नाम नहीं निकलता है और सब निकाल करके आ जाता है। इसलिए कहते हैं गोविंद की, इसलिए कहते हैं इष्टे सारसिक रागो परम अभिष्टता हुई तन्मय दशा विद्वसा रागात्मिका कथिता। रागात्मिका अनुसिता सा रागानिक उच्चते। ऐसे जो रागात्मिक जन, नित्य सिद्ध ब्रजवासी जन, उनके अनुगत्य करके वो भाव की किरण कण प्राप्ति करने के लिए जो साधन आदि करते उसे कहा जाता है रागानुगत साधक है। हम नंद जसोदा नहीं बन सकते हैं, किंतु नंद जसोदा की भाव की एक किरण कण हमारे हृदय में मिली है। वास्तव में राधा गोपी हम नहीं बन सकते, वो अहम ग्रुपसना आ जाए, मैं राधा हूँ, मैं ललिता हूँ, ऐसे जो कहने वाले होता है वो अहम ग्रुपसना हो गया। अहम ग्रुपसना वो अद्वैतवादी मायावादी में दे विल बी रिजेक्टेड, वो परित्यज्य हो जाते हैं। हम गोविंद की कैसे सेवा करें, राधा जी की अनुगत सेवा करें, जीवों की ये समस्त भावना दिखाते हैं। मेरी कहने तात्पर्य है, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, कोई साधारण वस्तु नहीं दे रहे। ये कहते अनर्पित चरिंग चिरात अरुण अवतीर्ण कलु समर्पयतु
उन्नत उज्जवल रसन, साक्षात में उस वस्तु के स्वयं को क्या करें, आस्वादन करें। है भाई रसोई बनाते हैं ना, थोड़ा चख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, ज्यादा नमक हो गया कि कम हो गया, देखना पड़ता ही नहीं, मैं जैसी इच्छा बना दो ठाकुर के खिलाफ, ठाकुर तुम्हारी नौकरी थोड़ी है, है? नकर है ना, अरे जो बना देखा ले, है? ठाकुर का नकर नहीं, ठाकुर की सेवा कैसे तुम्हारे, फिर स्वयं आस्वादन करके और दूसरे को महाप्रभु दे रहे हैं, कितना सुंदर स्वादिष्ट है। अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिना, संग चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रसों की सौंदर्य माधुर्य आदि आस्वादन करके और उसी के थोड़ा बहुत जीवों के दे रहे हैं, क्योंकि राधा प्रेम जीवों के लिए आस्वादन करना संभव नहीं है। एक छोटा चिट्ठी है ना, चिट्ठी है, खीर रखा गया, एक कढ़ाई खीर रखा गया, चिट्टियां कितने खा सकती है आप बताओ, एक बूंद नीचे पड़ जाए उससे हजारों चिट्टियां शाम तक चलेगा, लग जाता है, शाम तक चलेगा। वो भी पूरा खाली करने के लिए। तो राधा प्रेम की जो है उस स्वयं महाप्रभु ने उस राधा प्रेम के आस्वादन करे, उसके छीटे फूटे समझते हो, थोड़ा सा जो है जीवों के दे, वो है क्या चीज, बोले उसी की कहते हैं मंजरी भावों की, लोग कैसे स्वादिष्ट है, ये कहते हैं आपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादित अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्जवल रसम सभक्ति श्रेय। ये जो सभक्ति, ये जो उन्नत उज्जवल रसों की जो भाव माधुर्य उसको दे रहे, वो भी कैसे थोड़ी सी दे, एक बूंद है, चिट्टियां कितना खा सकती है, एक बूंद के आधी बूंद भी हो जाए उसी पेट भर जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव कहाँ तक पड़ पाए, पहले महाप्रभु उसको दे रहे अनर्पित समर्पित उन्नत उज्जवल सभक्ति हरि पुरुष सुंदर दिति कदम संदीर पिता सदा हृदय कंदरे स्मृति शशिनंदन, शशिनंदन गौरहरि, ये प्रेम को सबको दे रहे हैं, ये साधारण वस्तु नहीं दे रहे। एक शब्द में बोलो महाप्रभु कौन सा प्रेम दे रहे हैं, मंजरी भाव को देते हैं, सर्वोच्च प्रेम को दे रहा है, ये तो लोगों की पता नहीं है। आज बहुमूल्य धन यदि किसको दिया जाए जिससे ज्ञान नहीं हो, वो क्या करेगा, वो फेंक देते, इसके वो कदर आदर नहीं जाते हैं। आज वस्तु की ज्ञान होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। वस्तु में ज्ञान हो तो वस्तु के हम आदर कर सकते हैं, इस वस्तु के ज्ञान नहीं है उस वस्तु के हम आदर नहीं कर सकते हैं। और वस्तु की इसे कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान होने चाहिए, ज्ञानम गुच्छमे, चतुश्लोकी भागवत में तो कह रहे हैं, स्वयं नारायण ब्रह्मा जी के कह रहे हैं, मैं तुमको देना चाहता हूं, क्या तुम ग्रहण करोगे, वही गृहीतम मया, मैं तुमको देना चाहता हूं, ये तो दिखा, वस्तु के जब तक ज्ञान नहीं हो वस्तु की महिमा हम समझ नहीं पाए। एक महामूल्य, क्या बोले, महामूल्य है, वेरी वैल्यूएबल, एक रत्न के आपको दे दिया जाए, यदि इसको ज्ञान नहीं है वो सोचोगे ये कोई साधारण पत्थर होगा, है कि? इसलिए श्लोक आ रहे, चिंतामणि लोक सुखम शरद सुरद्रु क्या सर्ग संपदम प्रजच्छते गुरु पिते वैकुंठ में जोगी दुर्लभम,
श्रीमद है, इसमें वर्णन आया इस जगत में जो क्या बोला ना जो श्लोक बोला चिंतामणि लोक सुखम। इस जगत में किसी के चिंतामणि प्राप्ति हो जाए है क्योंकि लोग संपद देते हैं क्या बोले लोहे के पर्चा करा करके वो सोना प्राप्ति हो जाता है, जड़ वस्तु प्राप्ति। श्रोत्रु ये कल्प वृक्ष के द्वारा स्वर्ग आदि सुख भोग प्राप्त हो जाता है। रजक्ष जो गुरु प्रीति गुरु पाद में प्रसन्न हो जाता है। जिज्ञाम भी वैकुंठ जगहों की जो दुर्लभ वस्तु वैकुंठ आदि हम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर वैकुंठ करने से गुरु वृंदावन की समझना चाहिए। हाँ समझ हम उसके महिमा नहीं जानते। एक श्लोक याद करो, चिंतामणि क्या बोला, चिंतामणि लोक सुखम और शरद्रु कल्प वृक्ष सर्व संपदा आपके प्राप्त हो जाता है कल्प वृक्ष आदि के। अब प्रजच्छ जो गुरु प्रीति गुरुपाद में प्रसन्न हो जाता है वैकुंठ जुगनाओं की दुर्लभ, जोगियों की भी दुर्लभ जो वस्तु जो है जो योग तपस्या आदि के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किंतु गुरुपाद में प्रसन्न होने से प्राप्ति होती है। हम लोग के जो कुछ भी भजन साधन की रीढ़ क्या है, रीढ़ समझते हो गुरुदेव प्रसन्न हो जाए बस, और कोई हो ना हो हमें देखना नहीं है। रजक्षदु गुरु वैकुंठ जुगनाओं की दुर्लभ की बड़ी दुर्लभ वस्तु। अनेक जन्म कठोर टाइम क्या हो रहा है आरती हो रहे, अनेक जन्म की कठोर तपस्या आदि के द्वारा तब चित्त निर्मल होता है। अनेक जन्म पर साधन भजन आदि करके तब चित्त निर्मल हो जाता है। वो भी होता है भी नहीं भी हो जाता है, उसे कहा जाता है क्या, तो क्या बोले हस्ती गंगा स्नान के भांति, हस्ती के गंगा स्नान जैसे हाथी जैसे गंगा में भी स्नान कर लेते हैं गंगा जल के द्वारा, पवित्र गंगा जल है सूर्यों के द्वारा रोज आ करके आ जाते हैं और तट पर आकर के क्या करते हैं, फिर वो सारे धूल के जो है सूर्य के द्वारा लेकर के फुर जाते हैं। जैसे क्या है यथा हस्ती गंगा स्नान, लाभ कुछ नहीं। भजन साधन की हमें इसके पर ध्यान देना चाहिए। ये कैसे हम भजन साधना दिखता है, एक ही बस जीवन में एक लक्ष्य रखो, गुरुपाद की प्रसन्नता, और कोई प्रसन्न हो नहीं हो हमें लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए सब कुछ प्राप्ति हो जाए, उसके हमें ध्यान देना। हाँ समझ, इस संसार के लोग प्रसन्न होकर आपको क्या दे रहे बड़ा वो समझ देते हैं, बढ़िया हो। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। कृष्ण जो प्रेम दिया, कृष्ण भी प्रेम दिया कहाँ पर, वो वृंदावन के अंदर वृक्ष लता आदि को प्रेम दिया, जिससे वृंदावन के वृक्ष लता आदि गोविंद प्रेम में उन्मत्त हो जाते थे। मेनुगीत में सारे वर्णन है, गायों से लेकर के, बछड़े से लेकर के, वृक्ष से लेकर के, लताओं से लेकर के, वृंदावन में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब गोविंद प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। भ्रमर आदि
वो भी गोविंद प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। सभी गोविंद प्रेम में उन्मत्त, किंतु वृंदावन के अंदर, किंतु वो जो वृंदावन के जो वृक्ष आदि लता आदि जो कुछ भी कर रहे हैं वो समस्त क्या है, कृष्ण के नित्य परिकर है। तो कोई जीव तत्व नहीं है उसमें, इसको समझो है। वृंदावन की वृक्ष लता आदि जो कुछ भी वर्णन होते जा रहे हैं, वास्तव में सब स्वरूप शक्ति की मूर्तमान प्रकाश कहा जाता है। वो गोविंद के निज जन है। आपने घर में उत्सव बनाया है, बेटा के जन्म महोत्सव मनाया, बुलाया किसको? अपने परिवारजनों। खिलाया किसको? अपने परिवारजनों, बाहर के नहीं है? समझ में आ रहा है? वो महत्व अपने परिवारजनों में ही रहा, बस इतना ही था। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कर रहे? सदियों के एक व्यक्ति है कमा करके क्या करते हैं? सारे परिवार के पालन करते थे। और एक व्यक्ति अपने भोजन करते, अपने कमाते, अपने खाता है। कौन श्रेष्ठ है? जो स्वयं कमा करके दूसरे को भी पालन पोषण करते, उसकी महिमा है। समझ वही तो काम किया महाप्रभु ने किया कि कृष्ण केवल जो कुछ भी प्रेम प्रदान आदि किया वो केवल वृंदावन के अंदर ही अपने प्रियजन के आज चैतन्य महाप्रभु ने किया कि वृंदावन के अंदर बाहर जहां जहां पर महाप्रभु ने प्रेम, इसलिए महाप्रभु की महावदन्यता की विषय विशिष्ट दिखा। महाप्रभु सबको दिया। अपराधी जनों के भी चैतन्य महाप्रभु ने किया है, उनको भी प्रेम प्रदान कर, जगाई माधाई उनको भी, किसको? पापी तापी सबको महाप्रभु ने के उद्धार कर दिया। और महाप्रभु में एक विशेष है क्या, कोई अस्त्र धारण नहीं किया। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धीरिल प्राणिकारो नाम हरिल, हरि नाम दिया करिल सुधार। राम आदि अवतार में कृष्ण ने क्या किया? अस्त्र धारण किया। राम ने कितने असुर को मारा? तारका को मारा, अनेक असुर को रामचंद्र ने मारा। असुर कृष्ण भी अगासुर बकासुर से लेकर के और ब्रज के बाहर अनेक असुरों को मारा। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसलिए मारे और अस्त्र भी धारण नहीं किए। इसलिए एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो नाम हरिल, हरि नाम दिया करिल सुधार। और महाप्रभु ने क्या किया? हरि नाम दे करके सबको धार कर, नाम के द्वारा। यही है नाम रूपी अस्त्र, नमस्त्र। कलिजी में चैतन्य महाप्रभु नाम के द्वारा सबके चित्र सुधार कर। इसलिए कहते हैं राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो नाम हरिल। महाप्रभु किसी को मारा ही नहीं, काटा फटा नहीं है, उनके चित्त के शोधन कर, किसी के दर्शन दे करके, किसी के स्पर्शन दे करके, हैं बस दे दे आओ। सभी के क्या करते? पागल बना दे सब। कृष्ण प्रेम में सब उन्मत्त हो। महाप्रभु सबको पागल बना दे। इसलिए करे ना, अद्वैत आचार्य महाप्रभु के लिए एक पत्र लिखा। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के लिए एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? आउल के कोई हो बाउल।
बाउल के कोई आउल हैं? सब लोग होइया छे बाउल हाटे नाबिकाई चाउल आउल के कोई हो बाउल आउल बाउल चाउल ये क्या लिखा है कोई समझ नहीं आया हैं? अद्वैत आचार्य जो ये केवल एक ऐसे एक सांकेतिक श्लोक को लिख दिया महाप्रभु के पास भेज दिया है? बाउल के कोई हो बाउल हटे नाटिका चावल सब भैया से बाउल उसमें लिखा है आउल बाउल चावल ऐसे लिखा है उसके समझ में नहीं आ रहा सर्वदामोदर समझ गए समुद्र महाप्रभु के भाव में समझते कुछ भक्त लोग महाप्रभु के कहने लगे प्रभु ये अद्वैत आचार्य क्या लिखा है क्या तर्जा क्या लिखा है इसका अर्थ क्या है महाप्रभु ने एक सुंदर उदाहरण दिया देखो अद्वैत आचार्य ब्राह्मण है ब्राह्मण क्या करते पूजा करते हैं और पूजा करने से ठाकुर जी के क्या करते हैं आह्वान करते हैं बुलाते हैं आगच्छम आसन स्थानम ये ठाकुर जी आप आसन में पधारिए पूजा के समय करते ना इदम आत्मनियम केशवाय नमः ईशात्मने माधवाय नमः इदम नारायण नमः है आगच्छन्तु है आइए बैठिए तो इसे कहता है आह्वान कहा जाता है आह्वान मैंने इन्वोक टू कॉल महाप्रभु भी इसी प्रकार की करने अद्वैत आचार्य ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं इसी प्रकार बुलाते हैं ठाकुर जी की पूजा करने के बाद क्या करते हैं विसर्जन देते विसर्जन समझते हैं पहले आप चले जाओ पूजा हो गया विसर्जन करो तथापि लोगों के संबंध लोग नहीं आए तात्पर्य क्या है अद्वैत आचार्य ये कहना चाहते हैं प्रभु आप जिस कार्य के लिए आप इस संसार में आए थे वो कार्य पूर्ण आप इस संसार में जो आए थे कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आप सभी जीव को प्रेम प्राप्ति करनी है और कोई नहीं रहा सबका आपने दे दिया इसलिए हे प्रभु आप नित्य गुरु वृंदावन धाम में आप चले जाए महाप्रभु के बुलाया किसने अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य बुलाया अद्वैत आचार्य की कथा हम सुनते हैं अद्वैत आचार्य नवद्वीप में पधारे देखा तो ब्राह्मण लोग पूजा नहीं कर रहे ब्राह्मण लोग मंत्र जप नहीं कर रहे हैं वेद मंत्र आदि नहीं पढ़ रहे केवल जक्ष रक्ष काली शिव दुर्गा आदि देव देव की उपासना कर रहे तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा आदि करते जा रहे छाग आदि के बलिदान दे रहे छाग समझते गोट सेक्रीफाइस था और उसको खा रहे हैं आप समझ रहे मांस मछली आदि मद्य आदि शराब आदि पान कर रहे लोग कोई भगवान के भजन नहीं करते अरे कम से कम किसी प्रकार से एक बार तो भगवान के नाम तो ग्रहण कर नहीं करते केवल तर्क आदि के द्वारा बस डूबे रहते इसको देख करके अद्वैत आचार्य क्रोधित हो अद्वैत आचार्य विचार करने के लिए मैं ही स्वयं महाविष्णु सृष्टि करता और मैं ही स्वयं ध्वंस करता सदाशिव अद्वैत आचार्य है अद्वैत आचार्य ही इज कॉल्ड द कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु और सदाशिव सृष्टि करता ध्वंस मैं सृष्टि करता हूँ मैं ध्वंस करता हूँ इसलिए मैं ध्वंस कर देता हूँ अद्वैत आचार्य क्रोधित हो और इतने समय एरियल साउंड डिवाइन साउंड आया अद्वैत धैर्य धारण करो अति सत्तर तुम्हारे प्रभु स्वयं बलिनंदन श्री कृष्ण प्रकट होंगे ये महाविष्णु के भी ऊपर श्रेष्ठ कौन है स्वयं बलिनंदन श्याम सत्ता कृष्ण स्वयं रूप तदिका तुम आवेश तत्व जानना चाहिए
स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। इसलिए स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश। स्वयं रूपे भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। उनके एक है प्राभव और एक वैभव। उनकी होता है फिर बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु से क्या हुआ? मूल संकर्षण, संकर्षण, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदसाई है, ये सब तत्व दिखाते हैं। तो वही महाविष्णु की मूल कौन है? ब्रजमंडल श्याम सुंदर है। आज तत्व विचार है। इसलिए कह रहे हैं जो मैं तो वही हूं, महाविष्णु सृष्टिकर्ता ढंग से करता, सृष्टिकर्ता ढंग से। तो उसमें हीरा श्याम आने लगे। दैववाणी बोले अद्वैत धैर्य धारण करो, अति सत्तर मीन्स वेरी शीघ्र ही तुम्हारे प्रभु ब्रजमंडल कृष्ण प्रकट हो। अद्वैत आचार्य बोले जल्दी करने से कब होता है? मैंने कहा ना पानी ले आओ, बोले आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं मतलब क्या है? कभी भी आ सकते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद है, आठ ही नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने क्या की? बोले नहीं, अधुना अभी महाप्रभु के प्रकट करना है, कृष्ण को प्रकट करना है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने क्या की? गंगा जल और तुलसी पत्ता ले और गोविंद के लिए अर्पित कर। ईदम तोयम तुलसी तो बैंग नमः। गंगा जल और तुलसी पत्ता भगवान को अर्पित कर। भगवान की कोई तुलसी पत्ता दे और गंगा जल दे, भगवान रह नहीं सकते। तुलसी दौल मात्र न जलस्य चुनुकेन है, विकृत सर्वात्मा ना भक्त बस। स्वयं भगवान अपने को बेच देते हैं। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? तुलसी में जल प्रदान करो है? तुलसी में जल देने से भगवान अपने ही आप दिख जाते हैं। इसलिए कहते तुलसी दल मातृ जलस्व चुलुकीनो वा। थोड़ा सा पानी दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। तुलसी, गंगा जल और गंगा जल दे दो। हाँ? अरे भगवान के लिए अर्पित कर दो। लेकिन वो पूछ रही गंगा जल अर्पित करना है या केवल जल? अरे गंगा जल है तो अच्छे पर है, गंगा जल तो अच्छे है। घर में गंगा जल है कि नहीं है? और भगवान के लिए मणिमन अर्पित करो। का नाम लेके जल एक बूंद ठीक है। तुलसी दलो मातृन जलस्व चुनकेन वा। भगवान के लिए गंगा जल और तुलसी ऐसे अर्पित कर दी। भगवान अपने को तो मैं दिख जाता। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया? गंगा जल, वही गंगा जल और तुलसी लेकर के भगवान के नाम लेकर के भगवान की कहानी और सब ठीक है, है? और मतलब सब ठीक ठाक है कि नहीं है? बैठो। महाराज जी, जैसे भगवान का जो अवतार होता है तो किसी एक भक्त के लिए मतलब भक्त भी एक स्पेशल होते हैं। तो महाप्रभु के अवतार में वो भक्त श्रीवास है या कोई और है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलेंगे? अरे श्रीवास तो भक्त है। श्रीवास कौन थे? उस दिन तो बताया था। श्रीवास जी नारद ऋषि, नारद जी का होता है। नारद जी, साक्षात नारद जी ही महाप्रभु की लीला में श्रीवास जी के रूप में प्रकट हुए। भक्त अवतारम,
भक्ता नवमी भक्ति कम। श्रीवास ठाकुर भक्त है, इसलिए श्रीवास ठाकुर है कौन? नारद ऋषि। भगवान की सारी लीला में नारद ऋषि की विशेष सेवा। क्या रामलीला कहें, कृष्ण लीला कहें, जो भी लीला भी देखें, नारद ऋषि की सेवा ही प्रधान है। यदि नारद ऋषि नहीं होते, ये रामलीला भी प्रकट नहीं होता है। एक बार नारद ऋषि कठोर तपस्या आदि करने लगे, तो उसको देख करके कामदेव आ गया। कामदेव आकर के प्रणाम करने लगे। नारद ऋषि आंख खोला, ये कामदेव कहने मैं पराजित हो गया, तुम जीत गए। नारद ऋषि हो गया क्या? अहंकार हो गया, मैंने काम को जीत लिया। भगवान के पास गए, कहले प्रभु मैंने काम को जीत लिया। पहले नारद ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले पिताजी मैं काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले पागल मैं काम को जीतने का तू क्या जीतेगा? बोले हाँ, कामदेव ने कहा मैं पराजित जीत। फिर नारद जी चले गए किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी बोले भाई मैं जीत गया। बोले अरे ऐसे झूठ फूट मत बोलो है, तू भगवान की माया को नहीं जानते, काम को जीत नहीं सकते है। आज समुद्र मंथन के समय जब जहर उठा, सब जहर के लिए उस समय सब भाग गया, और जब अमृत उठने लगे और उसके लिए सब लपक पड़े। और स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करके असुरों के वंचित किया और देवताओं के। उस समय शिव जी नहीं था। शिव जी इसलिए कह रहे मैं प्रभु आपको मोहिनी रूप दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले अरे मेरा मोहिनी रूप दर्शन मत करो। बोले नहीं प्रभु एक बार तो दिखा दो कैसे आपके मोहिनी रूप है। तो भगवान जब मोहिनी रूप धारण किया, नारद उस समय शिव जी देख करके इतने उन्मत्त हो गए, पागल हो गए, दौड़ने लगे उसके पीछे। और उसके लंगोटी कहाँ खोल कर कहाँ चलेंगे पता ही नहीं चला। और फिर वहीं पर आकर के सबसे भगवान जब प्रकट हुए देख करके लज्जित। तो उसी की कथा कह रहे हैं नारद ऋषि, क्या बोले शिव जी कह रहे हैं मैं तुम्हारे पिता, वो भी काम के जीत नहीं सकते। काम के कौन जीत सकते? एकमात्र भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। विष्णु के पास गए और नारद ऋषि अहंकार में कहने लगे ये प्रभु मैंने काम के जीत लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा है मुस्कुराने लगे, अच्छा। बोले क्या? बोले जब फिर जो उधार से आने लगे, भगवान ने ऐसे एक सुंदर जोग माया की तरफ व्यवस्था कर दिया। एक मैरिज सेरेमनी चल रहा है, विवाह उत्सव चल रहा है, जहाँ पर वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं स्वयंवर सभा, दुल्हन फीमेल दुल्हन जो है सुंदर साज गोज करके है वहाँ पर आई है, हाथ में बरमाला लेकर के बैठी हुई खड़ी हुई है, किसके गले में? नारद ऋषि देख करके तो हैरान हो गए, बोले मेरे गले में मिल जाए है। नारद ऋषि सोचने लगे यह बरमाला मुझे लगा, ऐसी सुंदर जो लड़की है, सुंदरी है। फिर क्या करे? नारद ऋषि भगवान के पास पुनः आ गए, आकर के बोले प्रभु मुझे एक वर दीजिए। बोले क्या वर चाहिए? मुझे हरि मुख चाहिए। हरि माने श्री हरि और हरि माने बंदर। भगवान ने कहा एवं वस्तु जैसे जिससे तुम्हारे मंगल हो वही मैं वर देता हूँ। तो नारद ऋषि सोचा ये हरि मुख माने विष्णु के मुख देखने सुंदर है आगे, किंतु भगवान ने उसको क्या दिया? हरि मुख दे दिया। और वह पर क्या स्वयंवर सभा में दुल्हन खड़ी हुई माला लेकर वो सामने खड़ी हुई है, और वो देकर भी कहाँ से
जहाँ जहाँ पर वो चली जाती है उसके सामने नारद ऋषि खड़ी हुई है, बोले मेरे गले में माला है। सब देख करके सब हंसने लगे। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु है गरुड़ जी के पीठ पर चढ़ करके वहीं पर पधारे, और स्वयं भगवान विष्णु जब पधारे तो अब उन्होंने वो वरमाला ने क्या दी भगवान विष्णु के गले में, और गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके नारद से हैरान हो गया, भगवान तो मुझे दिया ही है। तब सब देवता लोग कहने लगे, अरे नारद तुम अपने तो मुँह तो देखो, हरि मुख है कि नहीं है? बोले हाँ, हरि माने श्री हरि के मुख है, देखने सुंदर है। बोले हरि नहीं, हरि माने बंदर के मुख। तो शीशे में नारद जी देखा, उनकी मुख कैसे था? बंदर। तब उस समय नारद जी ने अभिशाप दे दिया, ये जैसे मैं स्त्री के लिए जैसे मैं पागल हो और स्त्री के वियोग में जैसे मैं तड़प रहा, ऐसे भी आपकी होगा। देखो नारद ऋषि स्वयं भगवान को क्या दे दिया? शराब दे दिया, अभिशाप दे दिया। वही राम, वही विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए, वही लक्ष्मी सीता जी के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात जो है रावण ने सीता जी को हरण किया है, और राम और सीता में बिछोड़ हुई है। फिर नारद ऋषि ने और एक बात काम लगे, ठीक है, जिस बंदर के मुख आपने दिया, वही बंदर ही आपकी पत्नी को मिलाने के लिए सहायता करे। मेरे बंदर सेनाओं के द्वारा भगवान रामचंद्र लंका में चढ़ाई की, रावण के वध किया, और इसके पश्चात सीता जी को रावण के चंगुल से निकाल करके लाया है। इस समस्त कथा रामायण में वर्णन है। फिर सीता जी के अग्नि परीक्षा हुई है, और अग्नि परीक्षा करके सीता जी को ले करके अयोध्या में वापिस ले गए। इस समस्त वर्णन है। तो ये रामलीला की सारे कथा जो संक्षेप में सुनाया, इसके मूल कौन है? नारद ऋषि है। रामायण की जो मूल है नारद ऋषि का, और वही नारद ऋषि महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर परम भक्त। श्रीवास जैसे भक्त न होता हो भी सकते। श्रीवास जी के कनिष्ठ पुत्र छोटा बेटा मर गया आधी रात में, मध्य रात्रि में है। और दूसरी कक्षा में माताएं जो है रो रही थी, और ठीक दूसरी कक्षा में महाप्रभु समस्त भक्त के साथ नाम संकीर्तन कर रही थी। श्रीवास जी के पता चला उनके छोटा बेटा मर गया। श्रीवास जी दूसरी कक्षा में आकर के माताओं के कहने लगे, ये तुम लोग ऐसे रोते रहो तो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा विघ्न पड़ेगा। इससे महाप्रभु दुखित है, फिर तुम रो मत है। और यदि तुम लोग ऐसे रोते रहो और महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा हो, तो मैं ही स्वयं जो है गंगा में जाकर के कूद जाता हूँ, फिर छोड़ दे। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर सारे माताओं की जो है सांत्वना की, और फिर महाप्रभु के नाम संकीर्तन में आकर के योगदान दिया। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के कहने लगे, श्रीवास क्या तुम्हारे घर में कोई अनहोनी हुई? श्रीवास जी कहते हैं, प्रभु आप स्वयं भगवान आपके नाम जहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ पर ऐसे हो सकते? अनहोनी कहाँ हो सकती है? सर्व मंगलमय भगवान, सर्व मंगल्य मंगल्य, जिनके नाम लेते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम लेते ही भवसिंधु सुखाएं, जिनके नाम ग्रहण करने से जीवों की भवबंधन अपने आप क्या हुए टूट जाते, नष्ट हो जाते हैं। आज तो आप साक्षात नामी पुरुष है, नाम और नामी पुरुष है, तो हमारे घर में अमंगल कहाँ हो सकता है? महाप्रभु कर रही है, श्रीवास तुम बताओ, सच कर कुछ हुआ तो हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सर्वंतर्यामी है,
तथापि लोक शिक्षा के लिए कहने लगे श्रीवास बताओ क्या हुआ। तो श्रीवास ठाकुर कहने लगे प्रभु आपके दिए हुए मेरे कनिष्ठ पुत्र है आज मध्य रात्रि में देहांतर हो गया, शरीर छोड़ है। महाप्रभु रोने लगे श्रीवास है तुम्हारे बेटा चला गया और तुम ना मुझे समाचार दिया और ना तुम रोए है। महाप्रभु रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे चलो जिस कक्षा में तुम्हारे बेटा की मृत शरीर पड़ा हुआ मैं जाता हूँ। महाप्रभु गए, उस बालक के छत्ती पर हाथ रख दिए, प्राण संचार हो गए। महाप्रभु कहने लगे तुम कहाँ चले गए? प्रभु आप जहाँ से आप लाते हैं जहाँ भेजते हैं वहीं पर आपकी इच्छा से हमारे शरीर में आते और आपकी इच्छा से हम शरीर से चले जाते हैं। श्रीवास जी के मित्रपुत्र के द्वारा जगत जीव की शिक्षा आदि है। संसार के सारे जीव भगवत इच्छा से इस संसार में जन्म लेते हैं और भगवान की इच्छा से फिर इस शरीर छोड़कर चले जाते हैं। कौन किसके माता पिता है, कौन बंधु है। जब तक ये शरीर होता है तब तक हम उसमें संबंध रखते हैं। इसी जन्म में आप भी उसके कभी माता पिता बने थे, आज आप उसको माता पिता सोच मैं उसके माता पिता, किसी जन्म में वो तुम्हारे माता पिता बना था है, तुम्हारे कोख से ये तुम उसके कोख से जन्म लिया था। समझ ना, यही तो संसार चक्र है। संसार चक्र उसी की है। और जीव अपने अपने कर्म के अनुसार एक स्थान से एक स्थान में दूसरे स्थान में जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, आती जाती रहते हैं। जब तक हमारे कर्मों की फल रहते हैं वो हम वहीं पर रह जाते हैं और कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, हम शरीर छोड़ कर चले जाते हैं। वो एक निर्धारित समय है, इस शरीर में आप कब तक रहोगे, रहेंगे है कि नहीं? और वो समय होने के साथ ही साथ छोड़कर के चले जाते हैं। यही जीवों की कर्म की वृत्ति का है, कर्म के द्वारा चलते जाते हैं। अनादि काल से जीव इस कर्म में, ये कर्म के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और उसी की हम एक संबंध जोड़ लेते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र यथा स्वप्नवत। सपनों में मैं राजा बन जाता हूँ। जब नींद टूटा देखा तो मैं वही जो फटा फुटा गोदड़ी में सोया तो उसी प्रकार है, यथा स्वप्नवत जीव उसी प्रकार संसार में भ्रमण करते जाते। ये सुख दुख सुख के वो मोह मात्र है, मोह और कुछ। इसके जो जान लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके जो जान लेते हैं वो उसमें मोह नहीं होता है, वो तो जानते हैं हमारे कर्तव्य ही करना है बस है। ये कर्तव्य ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुत्र संतान को जन्म दिया तो उसके पालन पोषण भरण जो मुझे आपको करना कर्तव्य है। आज ये विधान है सत्य। अंतिम में क्या, भजन करो, सबके भजन में लगा। माता पिता की कभी अनादर करना नहीं चाहिए है, क्योंकि देखो माता पिता की कृपा से हमारी शरीर प्राप्ति हुई है। यदि शरीर नहीं होते मैं भजन कहाँ करता? ये भी बहुत जरूरी बात है, मूर्ख लोग इसे समझ नहीं पाते। माता पिता ने कृपा करके मुझे शरीर दिया, आत्मा तो नित्य है। यदि माता पिता के द्वारा हम शरीर नहीं प्राप्ति करते भजन कहाँ करते? इसलिए सभी क्या है, माता पिता के निकट वो ऋणी है। जीव जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ 6 प्रकार के ऋण हो जाते हैं। 6 प्रकार के ऋण है नहीं आपके पास
शब्द का ऋण क्या है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण है, ये सब ऋण हम लोग। किंतु उस ऋण से मुक्त कैसे होंगे? माता पिता के ऋण से कैसे मुक्ति हम करेंगे? बोले माता पिता की सेवा करो है? जब इसलिए परम गुरु महाराज, माता पिता के जब तक सेवा नहीं करोगे तुम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। माता पिता की सेवा करो। तो भक्त लोग कहेंगे माता पिता कौन है? अरे सही से परम बंधु, सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति का। परम माता पिता कौन है? भगवान। भगवत सेवा करने से मेरे माता पिता भी ऋण से मुक्त हो गया है? समझ में? आप भजन करो, आपके माता पिता भी ऋण से मुक्त हो जाए है? सब है? इसलिए भगवान की कतो मुकुंद कर्तव्यम परिहित कर, कतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र मुकुंद भगवान श्री हरि की भजन है। माता पिता की कभी अनादर मत करो। अनादर समझते हो? है डिसरेस्पेक्ट मत करो, उनके सम्मान दो। क्यों? न उनकी कृपा से हमें शरीर प्राप्त है। ये कोई साधारण थोड़ी, कहाँ कीड़े मकड़े होकर के घूम रहा था है, पशु पक्षी होकर के घूम रहा था, किंतु माता पिता ने कृपा करके मुझे शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य से तो मनुष्य मिलता है, पशु से पशु से नहीं मिलता है। गाय के बच्चा गाय होता है, कुत्ते के बच्चा है, कुत्ते के बच्चा कुत्ते, गधे के बच्चा गधा होता है, सुअर के बच्चा क्या होता है? सुअर होता है। और मनुष्य के बच्चा क्या होता है? तो हम जो मनुष्य जब शरीर से प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? कुत्ते से ना, मनुष्य क्या आप बताओ? गधे से। कहाँ से पिया? माता पिता। इसलिए कहते हैं पहले तो मनुष्य बनो, गधा मत बनो। हाँ? समझ सुने महाप्रभु जो अवतार है, तो इसमें अवतार गुप्त क्यों है? वो महाप्रभु कहते हैं इस कलियुग में जो है चैतन्य अवतार जो है वो कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। प्रच्छन्न माने गुप्त अवतार। वो सबको दिखाना नहीं चाहते। जैसे देखो, जो व्यक्ति बहुत धनी होता है ना, वो ऊपर से बहुत कंजूस होकर के रहा था, जिसको ऊपर से देखने लगते मैं जा रहे, चोर डके तो उसे पकड़ लेंगे। आप हाथ में यदि हीरे सोने आदि लेकर के चले देंगे तो चोर डके आपको पकड़ लेंगे, नहीं लेंगे, मार भी दे सकते। तो आपके पास महामूल्यवान धन हो, कैसे जाओगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम धन को देने के लिए छुप करके रखा है, इसलिए कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार। कलियुग में जो है प्रच्छन्न अवतार के रूप में है, महामूल्यवान धन को दे रहे हैं। और दूसरी बात जो है वही कृष्ण जो है राज के भाव और कांति देकर के आए है, अपने को प्रकाश नहीं करे सबके पास। जो भक्त जन के पास प्रकाश किया, जैसे रायनमंद के पास स्वरूप दामोदर, ऐसे भक्त के निकट अपने सत्य के प्रकाश किया। सर्व भट्टाचार्य आदि भक्त के निकट प्रकाश कराते, अभक्त के निकट महाप्रभु छुपा। जब सबको प्रेम दे दिया तो सबको भक्त हो गया, प्रकट हो गया। जब सबको प्रेम दे दिया, सबको प्रेम दे दिया, तो प्रकट हो गया।
अरे भाई आग कब तक छुपे रह सकते हैं? सूर्य सब प्रकाशमान है, बादल कब तक उसके बाहर से ढक रहते हैं? बादल कुछ समय बाद अपने आप। इसी प्रकार लीला लेकिन जैसे बाकी अवतार में डिक्लेयर किया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन यहाँ पे सबको बोल रहे हैं कि ये बोलना मत, बोलना छुपा के रखो। बाले लीला में तो बोला था। ये नवल लीला करते महाप्रभु इसी के द्वारा अपने भाव माधुर्य के प्रकाश कृपा दे रहा है। और बाकी भक्तों को भी मना करते थे कि केशव disclosing। कश्मीरी आपको बात